ظہر کے وقت کا سورج بھی سردی سے یخ پڑ رہا تھا۔ اس نے سیاہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ سکون سے نماز پڑھنے کے بعد اس نے آخری رکعت سے سلام پھیر کر دوپٹہ کھولا تو اس کے بالوں سے پھسل کر کھلتا چلا گیا اور اپنی آخری تہہ بھی ڈھیلی کر گیا۔ اس نے ٹھنڈے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر ان کا یکساں اثر کم کرنا چاہا اور پھر سرخ سی ہتھیلیوں کو جوڑ کر بلند کیا۔ اس کا تعلق اپنے اللہ سے ولی کے برعکس بہت اچھا تھا۔ اسے اس سے محبت تھی۔ اس کے لیے نماز پڑھنا اسے خوشی دیا کرتا تھا۔ فجر کی نماز اگر کبھی قضا ہو جاتی تو وہ اس کے لیے خود کے وجود میں خالی پن اترتا محسوس کرتی۔ وہ ایک آئیڈیل مسلمہ نہیں تھی، مگر اس کا اللہ سے ریلیشن مضبوط تھا۔ کیا تھا، کیسے تھا، اس کا جواب اسے کبھی نہیں ملا۔ وہ اللہ سے محبت کرتی تھی، مگر وہ محبت کو کبھی بیان نہیں کر پائی۔ اسے اندازہ تھا اتنا، اور نہ وہ کر پائے گی۔ چند پل ہتھیلیوں کے پیالے کو تکتی رہی، پھر اس کے بعد لبوں میں جنبش ہوئی اور وہ بند کی آنکھیں دعا مانگنے لگی۔ اپنے نصیب کی دعا، والدین کے لیے دعا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا، اپنے گھرانے کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، اور آخر میں جس دعا کا اسے انتظار رہا کرتا تھا، ولی کے لیے۔ ولی کے لیے دعا کرتے اس نے آنکھیں کھول لی تھیں، مگر آنکھیں کھول لینے کے بعد بھی وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ صبح والے آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ اس کے کہیں آس پاس ہی تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی حفاظت کریں اللہ، ایک دعا تھی جو اس کے دل سے ہر دم نکلتی تھی۔ بقول زمان احمد کے اس کے دشمن زیادہ نہیں تھے، مگر جتنے تھے وہ بہت ظالم تھے۔ اسے ہر دم دھڑکا لگا رہتا۔ وہ کبھی دیر کر دیتا تو اسے صبر آنا مشکل ہو جاتا۔ ایک غیر کی محبت کو اپنے دل میں آنے سے وہ روک نہیں سکی۔ بی جان کہتی تھیں شادی سے پہلے والا مرد عورت کی زندگی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا، مگر وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جو مرد بغیر اجازت لیے دل کے بند کواڑوں کو کھولتا اندر جا بسے، اس کی سزا عورت کو کیوں کر سنائی جائے؟ اس نے جان بوجھ کر اسے نہیں چاہا تھا، اس نے تو بس محسوس کیا تھا کہ اس کی نظروں سے وہ پگھلتی تھی، اس کی تکلیف سے دل کٹتا تھا، اس کی گلابی آنکھوں کی خشکی اسے مات دیتی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو اس سب کو دعوت نہیں دی تھی کہ وہ خود تک آئیں۔ اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور نہ ولی کی جانب سے اسے ایسا کوئی جواب موصول ہوا تھا۔ وہ تو تھا ہی صدا کا دور، وہ تو کبھی اس کے قریب ہی نہیں آیا، غلطی سے بھی نہیں۔ پھر کیوں ایسا تھا کہ وہ قریب قریب لگتا تھا؟ کیوں اس پر غصہ آ جانے کے بعد بھی وہ اس کی فکر کرنا چھوڑ نہیں پاتی تھی؟ کیوں وہ اجنبی ہوتے ہوئے بھی اپنا تھا؟ کیوں آخر وہ اس پر سختی کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے، ناک سرخ ہوئی، ہونٹ لرزنے لگے۔ اللہ جانتا تھا وہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، اس نے اس سے محبت سوچ کر نہیں کی تھی۔ وہ تو اس کی کچی عمر کا خواب تھا جس کا رنگ اس کے دل پر پکا ہوتا جا رہا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھی، جائے نماز طے کی اور اسے سنگھار میز پر رکھا، پھر دوپٹہ سر سے اتار کر کندھوں پر پھیلاتی باہر آئی۔ باہر زندگی ویسے ہی چل رہی تھی، مخصوص چہل پہل، اور وہ بھی دن چڑھے کی ساری سرگرمیوں کے ساتھ۔ اس نے نیچے اتر کر بی جان کو یہاں وہاں ڈھونڈا۔ وہ گیسٹ روم میں کسی مہمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شادی کا گھر تھا اور اگلے ہفتے سے مہمان آنے ہی والے تھے، مگر اندر بیٹھی خاتون شاید زمان کی جاننے والی تھی۔ اس نے ہاف بندھے بالوں سے نکلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور دروازے سے ذرا اندر جھانکا۔ وہ 25-26 سال کی بہت خوبصورت سی عورت تھی، نفیس لباس میں ملبوس۔ اس نے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، ساتھ وہ مسکرا کر بی جان سے کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ صوفے کے ایک جانب سیاہ بالوں والا اسی کے جیسا پیارا سا بچہ بیٹھا تھا، شاید اس کا بیٹا ہو۔ وہ دروازے سے پیچھے ہوئی۔ بی جان گیسٹ روم سے باہر نکلی تو ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ ابرو سے گیسٹ روم کے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ولی کی دوست کی بیوہ ہے، کانتا۔ تم جا کر اندر بیٹھو، میں ذرا چائے پانی کا انتظام کرواؤں۔ اس کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ کچن کی جانب لوٹی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کانتا جو زین کے ماتھے پر گرے بال درست کر رہی تھی، عمل کو دیکھ کر سیدھی ہوئی، پھر اسے دیکھ کر اس کے نرم خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم۔ وہ پاس چلی آئی، چہرے پر آتی لٹ کو ایک بار پھر کان کے پیچھے اڑس کر وہ اس سے ملی۔ وعلیکم السلام۔ بہت گرم جوشی سے گلے ملنے کے بعد اس نے عمل کو خود سے الگ کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی شناسائی آخر اس انجان عورت کو اس سے کیسے۔ اس نے جھک کر زین کے نرم گال کو 2 انگلیوں سے چھوا اور پھر متذبذب تاثرات کے ساتھ مقابل صوفے پر جا بیٹھی۔ کانتا تو اتنی خوش تھی کہ اس سے بتایا نہ جاتا۔ کیسی ہیں آپ عمل؟ نام؟ اسے اس کا نام کیسے پتا؟ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکا کر چہرے پر پھیلی ناسمجھی رفع کی اور پھر مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک۔ ویسے کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ کانتا بے ساختہ ہنس دی۔ ہنسنے سے اس کے گال اوپر کو اٹھ جاتے تھے اور
और उनका रंग गुल अनारी से रंग में ढल जाता। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत औरत थी। अमल ने उससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। कह भी सकते हैं। वैसे आपका नाम मुझे आपकी अम्मी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले। उसने इत्मीनान बख्शी सांस खारिज की और बी जान ने बताया था उसका नाम उनको। कैसी हैं आप? और ये आपका बेटा है, नाम क्या है इसका? अपनी सारी बेचैनी छुपाकर उसने जल्दी से मेज़बानी निभाई। जी मेरा ही बेटा है, जैन नाम है इसका। जैन सलाम करो अमल आपी को, उसने जैन से कहा और फिर जैन शर्माता हुआ उठा, उस तक आया और अपना मासूम सा छोटा हाथ उसकी जानी बढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम अमल आपी। अमल ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठा लिया। वो सुर्ख होते गालों से उसके साथ बैठा रहा। ओ अमल को उस पर बेहद प्यार आया। आपका बेटा बहुत क्यूट है कानिता, यही उसके मुंह से निकला और यही तय हुआ। वो बुरा मनाए बगैर मुस्कुराती रही। उसके चेहरे पर सादगी थी, ना कोई अजीब किस्म की ज़ुमायनी मुस्कुराहट, ना कोई ऐसा तासुर जिससे अमल गैर आरामदेह हो जाती। क्या करती हो अमल? कुछ देर बाद कानिता ने पूछा था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो गैरों के साथ इतना जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं होती थी, मगर कानिता का मिजाज और था। अभी अभी बीएससी के पेपर से फारिग हुई हूँ। आप क्या करती हैं? वज़ाकता से वो पढ़ी लिखी सलीका शुआर सी औरत लगती थी। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट, यहीं इसी स्कूल से ज़रा आगे जो पहला इलाका शहर को लगता है ना, मदीना मस्जिद के साथ वाला, मैं यहाँ एक स्कूल में जॉब करती हूँ। वली ने मुझे इस जॉब के हसूल में बहुत मदद की थी। आखिरी बात पर अमल चौंकी। जिस तरह वो वली का जिक्र कर रही थी उससे साफ जाहिर था वली की उनसे अच्छी खासी जान पहचान थी। साफ जाहिर है कि उसने मुस्कुराकर इस्पात में सर हिलाया। दफातन बीजान कमरे में दाखिल हुई और उनके पीछे मुलाजमा लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए अंदर आए। मेरे बेटे की शादी है 2 हफ्तों बाद, तुम ज़रूर आना कांता बेटा। वली से मैंने बारहा पूछा कि कोई जानने वाला रह तो नहीं गया। मजाल है जो ये लड़का किसी के बारे में बता दे। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें शादी की दावत देने तुम्हारे घर भी आ जाऊंगी। आओगी ना शादी पर? वो वली की जानने वाली थी। बीजान का निहाल होना तो बनता ही था। अरे नहीं बीजान, आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, मेरे घर आइएगा, ज़रूर आइएगा, मगर इस तरह मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं आऊँगी आपके बेटे की शादी पर, मगर शायद ज़्यादा देर ना ठहर सकूँ। जहन और मेरे स्कूल का मसला होगा फिर। उन्होंने आराम से माजरत की तो बीजान मुस्कुराई। भले तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना, मगर शिरकत ज़रूर करना बेटा, मेरे घर की पहली खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा। अमल पंजों के बल बैठी चाय बना रही थी। फिर उनका कप उनकी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहते कप थाम लिया। दरअसल जैन बहुत दिनों से वली को याद कर रहा था। वली मसरूफ़ था कामों में, तो मैंने सोचा कि जैन को उससे मिलवाऊँ और आप लोगों से भी मिल लूँ। बीजान खिले खिले चेहरे के साथ मुस्कुराएं। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, नहीं तो वली ने तो मुझे कभी बताना ही नहीं था। बस अभी आता होगा आगा जान को लेकर वो फिर से बीजान के साथ मुकाबिल सोफे पर जा बैठी। कुछ ही देर में बातों के दरमियान बाहर से उसकी कार के हॉर्न की आवाज़ आई थी। फिर गेट खुलने की, कदमों की चाप। जा अमल, वली को बुला ला, यूँ ना हो कि फिर से वापस चला जाए। उसने सर हिलाया और गेस्ट रूम से बाहर निकल आई। वो उसे किचन में नज़र आ गया, सुबह वाले लिबास में, हमेशा की तरह खामोश और संजीदा। वो कानिता आई हैं आपसे मिलने, बीजान बुला रही हैं आपको गेस्ट रूम में। वो जो पानी पी रहा था बुरी तरह हैरान हुआ। शायद वो कानिता की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था। कौन कानिता? अनजान बनते उसने सरसरी सा पूछकर ग्लास रखा और उसकी जानिब पलटा। स्याल लंबी फ्रॉक उसके टखनों तक गिरती थी और नीचे से चूड़ीदार पैजामा बहुत हल्का सा दिख रहा था। जैन की मम्मा। अमल ने भी उतने सुकून से जवाब दिया और किचन के दरवाजे से हट आई। थोड़ी देर में वो गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो अमल और बीजान को कांता के मुकाबिल बैठे देखा। वो बहुत खुशदिली से बातें कर रही थी। उसने सलाम किया और सामने के सोफे पर जा बैठा। कैसी हैं आप कानिता? यहाँ कैसे आना हुआ? जैन उसके पास भाग कर आया। उसने उसके माथे पर बिखरे बालों को हाथ से कुछ और बिगाड़ा और फिर अपने पास बिठा लिया। ये तुम जैन से पूछ लो, इसने बहुत तंग किया है मुझे इन सारे दिनों में। वो कि मुझे वली के पास जाना है, वली से मिलना है। मेरे पास इसे यहाँ लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी बात पर मुस्कुराकर उसने सर झुकाकर जैन का चेहरा देखा। क्यों भाई, क्यों तंग करते हो अपनी मामा को? उसने मीठी सी खफगी से कहा तो अमल मुस्कुराई। उसने वली को कभी किसी बच्चे के साथ इतना बेतकल्लुफ़ नहीं देखा था, मगर फिर भी उसे मालूम था कि वली को बच्चे पसंद थे। बस वही था जो उसकी जानिब से इतना बेफिक्र था। अगर जो वो भी कभी उसकी ऐसी परवाह करता जैसी वो करती। उसने सर झटका। कानिता अब जाने के लिए उठ रही थी। उन सबसे शादी में आने का वादा करके वो पलट गई तो वो तीनों भी गेस्ट रूम से बाहर निकल आए। चलें बीजान, अब मैं भी चलूँगा, बस सरदार बाबा को छोड़ने आया था। कोई काम है आपको? जाते जाते उसने पलट कर पूछा तो बीजान को यकदम याद आया। तुम्हारा कुर्ता सिलने के लिए दिया है मैंने, वो लेकर आना, नहीं तो गुम हो जाएगा। उसने सर हिलाया।
अमल ने मुस्कुराहट दबाई। बीजान, आपके लिए इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बाजार। मुझे नहीं पता आपने कुर्ता किसको दिया। वली अहमद सख्त बेजार हुआ था। बीजान हस्बे आदत खफा हुई। लड़के कोई ख्याल है भी अपना या नहीं? किसी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। शादी का पूछो तो तुम कहती हो कि मैं क्या करूँगा शादी करके। ये हद थी। बीजान के पीछे खड़ी अमल हंस पड़ी। वली के कान सुर्ख हुए, मगर बीजान खफकी से बोले जा रही थी, लड़कों को जाकर देखो, बाजारों में सौ चक्कर लगाते हैं खुद के कपड़ों के लिए, शादी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। छः लड़कियों से बैक वक्त मोहब्बतें भुगता रहे होते हैं और एक तुम हो वली। अमल को अपनी हंसी रोकना उस समय बहुत मुश्किल लगा। वली बीजान को रोकना चाह रहा था मगर बेसूद। तुम छः लड़कियां नहीं पसंद करते, कम से कम कोई एक ही पसंद कर लो। यूं इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? पल भर को वली की नज़रों ने उनके पीछे खड़ी लड़की तक का सफ़र किया और बीजान के करीब हुआ। बीजान, मैं कुर्ता लेने ज़रूर चलूँगा और आइंदा मेरी मजाल जो मैं खुद से गफलत बरतूं। बीजान जो कदरे गुस्से से उसे देख रही थी यकदम हंस दी। वो बोला इतने प्यारे तरीके से था, और पसंद कब करोगे लड़की? अमल ने निचला लब दबाए अपने दूधिया पैरों को देखा। वो उसके झुके सर के बावजूद भी उसके चेहरे पर फैले कोसे कज़ा के सारे रंग देख सकता था। बीजान प्लीज़, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम में ले जाऊँगा ना आपको। झुककर उनको हल्का सा गले लगाते उसने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया। और वो बीजान उसे जाता देखती रह गई। सफ़ेद हवेली से खासे फासले पर हुसैन अहमद की हवेली खड़ी थी। शुरू में जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो ये हवेली उन दो हवेलियों के साथ ही थी, मगर फिर हुसैन ने जगह गांव के आखिरी सिरे पर लेकर एक शानदार और आला हवेली तामीर करवाई, जो हसन और जमान की हवेली से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा बेशकीमत थी। उस हवेली में भी शादी करीब आने के बाइस खासी रौनक हो रही थी। अमीना और शाजिया को आजकल रस्म के लिए बिठाया जाना था, इसलिए बहुत सी लड़कियां उन दोनों के आसपास बैठी उन्हें संवारने में मसरूफ़ थी। वो शहर से गांव लाई जाने वाली पार्लर की लड़कियां थीं, जिन्हें यहाँ सिर्फ उनकी तराश खराश के लिए लाया गया था। एक जानिब पैर ऊंचे किए नखुवत से बैठी अमीना लड़की को ज़रा हाथ हल्का चलाने का कह रही थी, जो उसके पैरों का मसाज कर रही थी, तो दूसरी जानिब तने नकूश के साथ गर्दन पीछे करके बैठी शाजिया थी, जिसका फेशियल किया जा रहा था। माँ जी बता रही थी कि अमल और वली का कोई किस्सा चल रहा है। अमीना ने उसी बेनियाजी से कहकर शाजिया को देखा। लड़की अब टिशू से उसकी गर्दन पर लगा लोशन साफ कर रही थी। जवाबन उसने कंधे उचकाए। मुझे भी माँ जी ने ही बताया था। खैर, उन्हें किसने बताया ये सब? ऐसी बात पर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। अमल, वो इतनी डरपोक लड़की, भला वो क्यों मौत के मुंह में हाथ डालेगी? वली से तो कोसों दूर रहना चाहिए उसे। पता नहीं अब ये सच भी है या नहीं। अमीना ने भी कंधे उचकाए थे, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, माँ जी कह रही थी कि उन्हें अर्जुमन चची ने बताया, लेकिन उन्हें कैसे पता? शाजिया तंजन मुस्कुराई। जाहिर है नाजिया ने बताया होगा, जो अमल की पक्की सहेली है। अमीना पर जैसे कोई इंकशाफ हुआ, यकदम अपनी कुर्सी पर आगे होकर बैठी। अरे शाजिया, उसी ने बताया होगा, भला और कौन बताने वाला है? लेकिन वो तो अच्छी दोस्त है उसकी, उसको क्या पड़ी ऐसे राज खोलने की? कोई पुरानी खार उतारनी होगी उसने, और क्या? शाजिया परवाह किए बगैर बेजारियत से बोली तो अमीना ने समझ कर सर हिला। वैसे शाजिया, हो सकता है कि ये सब सच हो। अब ऐसी बातें यूं ही तो नहीं फैल जाती ना, कोई बात होती है जब भी तो दुनिया को मौका मिलता है अपनी जुबान खोलने का। बदमजा होकर वो फिर से टेक लगाकर बैठ गई। अच्छा, अब तुम ऐसी वैसी कोई बात ना कर देना लोगों के सामने। जो भी है वो नंद है हमारी, हमें मोहतात रहना होगा। जमान चचा की हवेली जाएंगे तो खुद ही सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। और अभी माँ जी को भी मना कर दो कि कोई बात मुँह से ना निकाले, यूं ही खामखा शादी का मजाक किरकिरा कर देंगे ये लोग, और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। उसे तंबीह करके शाजिया आपके ज़रा आरामदेह होकर बैठी तो अमीना ने बुरा सा मुंह बनाया। भला उसने किसको बताना था? मगर अब पेट में खुलबली मचने लगी। उसे किसी को तो बताना होगा, मगर किसे, ये भी अभी उसे सोचना था। निढाल से अमल ने सारे शॉपिंग बैग्स एक जानिब सोफे पर डाले और फिर खुद भी सोफे पर ढेर हुई। आज के तवील चक्कर ने उसे थका दिया था। बीजान ने भी हाथ में पकड़े बैग्स एक जानिब रखे और घुटनों पर हाथ रखती सोफे पर बैठी। बीजान प्लीज़ मुझे चाय पिलवा दें। ऐसी सख्त सर्दी और थकावट में उसे चाय की शदीद तलब हुई तो बीजान ने सर हिलाकर नूरा को आवाज़ दी। थका दिया आज की शॉपिंग ने तो बीजान। उसने चादर उतार कर रखी और दुपट्टा फैलाकर सामने लेती पैर ऊपर करके बैठी। हाँ, थका तो दिया, मगर शुक्र के बाजार का काम पूरा हो गया। अब बार बार जाने की झंझट से जान छूटी। वैसे भी जमान कह रहे थे कि मेहमान आने वाले हैं और उनसे पहले सारी तैयारियां निपटानी है। शुक्र है आज ये भी हो गया।
उसने थका सर सोफे की पुश्त पर डाला। मेहमान कब तक आएंगे? नूरा से चाय लेते उसने पूछा तो बीजान ने चाय का घूंट भरते उसे देखा। बस 1-2 दिन में दूर दराज के मेहमान तो आते ही होंगे। मुझे गर्म बिस्तर वगैरह भी निकलवाने हैं और कमरों की सफाइयाँ भी करवानी हैं। या खुदाया कितने काम हैं। एक तो थकावट, ऊपर से इतने कामों का सुनकर उसे मजीद थकावट महसूस हुई। कल से करेंगे बीजान, आज तो रहने दे। आज होगा भी नहीं, मगरिब हो गई है और रात का वक्त है। सुबह ही करवाऊंगी सारे काम मुलाजमों से। गरम गरम चाय ने उनकी सारी सर्दी को ख़त्म कर दिया था। कुछ देर बाद वो कप सेंट्रल टेबल पर रख कर उठी और अपनी सारी शॉपिंग उठाए कमरे में चली आई। पहले वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ी और फिर शॉपिंग बैग्स में से एक छोटा सा खाकी बैग निकाला। उसके अंदर 2 उंगलियां डालकर उसने उसके अंदर मौजूद एक नाजुक सी शीशी निकाली। शीशी में भरा सियाल कासनी रंग का था। उसने ढक्कन हटाकर अपनी कलाई पर हल्का सा स्प्रे किया तो सारा कमरा पल भर को खुशबू से महक उठा। उसने सांस के साथ खुशबू अंदर उतारी। मगरिब के बाद की नीलाहट कमरे के बाहर बिखरी थी और उसके कमरे की मध्यम जर्द बत्तियां रोशन थी। ऐसे में उस खुशबू का कमरे की फिजा में तहलील होना उसे मजीद ख्वाबनाक बना रहा था। उसने एहतियात से शीशी वापस अंदर रखी और फिर साथ ही एक की चेन निकाला। उस पर बहुत नाजुक सी बारीक जंजीरें लटक रही थी और उन जंजीरों के इख्तिताम पर जगह जगह छोटा सा W लिखा था। उसने मुस्कुराते हुए उसे भी अंदर डाला और फिर अपने साइड की दराज में छोटा सा बैग रखकर दराज बंद कर दिया। ये उसने बीजान की नज़र से बचकर वली के लिए ख़रीदा था। वो उसे ये तोहफ़ा देना चाहती थी, खुशबू का तोहफ़ा। ख्वाबनाक सा कमरा उसे बिला वजह ही अच्छा लगने लगा। उसने देर रात तक डेरे पर रहकर कामों को समेटा और फिर सुनसान पड़े दालान से उतरकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। अगले चंद दिनों में हवेली में मसरूफ़ रहने वाला था, इसलिए ज़मान अहमद के हुक्म पर उसने आज सारे पिछले कामों को भी निपटा दिया। हवेली की जानिब बढ़ती उसकी गाड़ी अंधेरे में घिरी नज़र आ रही थी। कच्चे रास्तों पर सर्दी के बाइस पगडंडियाँ सुनसान पड़ी थी। दफातन उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देखते ही खेतों में घुसा है। उसके अब्रू सिकुड़े। आसपास बारीक बीनी से देखता वो चंद पल जांचता रहा, मगर जब उसे कुछ दोबारा महसूस नहीं हुआ तो कार आगे बढ़ा दी। शायद उसका वहम था। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो हवेली के सामने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। अंदर लाउंज से लड़कियों के तालियां बजाने और गाना गाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। उसने खौफ से सर झटका और फिर जो दरवाज़ा उसके कमरे का लॉन के पीछे की जानिब खुलता था उसे धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। ये दरवाज़ा उसने बहुत बाद में बनवाया था, बैक डोर, जो वक्त के साथ साथ उसकी तवक्को के अन मुताबिक उसकी ज़रूरत बनता गया था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और चाबियां, मोबाइल और चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर रखकर जैसे ही मुड़ा, उसके कदम रुक गए। 1 सेकंड लगे था उसे तब्दीली भांपने में। एक छोटे से खाकी बैग के ऊपर अमल नाम की चिट लगी थी। उसने संजीदा चेहरे के साथ आगे बढ़कर उस पैकेट को उठाया और फिर 2 उंगलियां डालकर अंदर मौजूद नाजुक सी शीशी बाहर निकाली। उसके अब्रू सिकुड़े। परफ्यूम स्प्रे किए बगैर उसने टेबल पर रखा। अंदर कुछ और भी बज रहा था और फिर अपनी हथेली पर उसने जैसे ही खाकी पैकेट उल्टा, उसकी एक की चेन उसकी हथेली पर फिसल कर आ गिरा। वो एक कदीम तर्ज का कोई लकड़ी का बना छोटा सा घर था जिसके नीचे बहुत सी बारीक चेन्स लटक रही थी। उन जंजीरों के आखिरी सिरे पर बहुत से छोटे छोटे W बने थे। उसने गहरा सांस लेकर दोनों चीज़ों को दोबारा से पैकेट के अंदर डाला और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। बाहर लाउंज में आज लड़कियों का जमे गफीर था। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही थी, ढोलकी में लड़कियों का इजाफा भी होता जा रहा था। अमल ने आज गहरे कत्थई रंग में सिल्क की लंबी कमीज़ पहन रखी थी जिसकी आस्तीनें हथेलियों तक चूड़ियों की सूरत आती थी। नीचे कमीज से ज़रा हल्के रंग का चूड़ीदार पजामा पहन रखा था और दुपट्टा भी सिल्क का ही एक कंधे पर डाला था। हाँ, बालों को उसने आदत के बरखिलाफ आज फ्रेंच चोटी में गूंदा था। गोल गोल एक सिक्के जितनी सिल्वर बालियां पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे बीजान ने किचन से आवाज़ दी तो वो लाउंज से उठकर किचन में चली आई। अमल बेटे जाओ, बराबर हवेली से नाजिया और अर्जुमंद भाभी को बुला लाओ। मुझे देखो याद ही नहीं रहा आज उन्हें ढोलकी का बोलना। तुम जाओ और नूरा को अपने साथ लेती जाना। उन्होंने उसे कहकर पीछे से दम पर पकती चाय को देखा और कामों में फिर से मसरूफ़ हुई। वो नूरा को लिए लॉन में आई, अपना दुपट्टा दुरुस्त करके सर पर लिया, मगर वो सिल्क की था, बार बार सर से ढलक जाता। वली जो कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल रहा था उसे दूसरी हवेली की जानिब बने दरवाजे के पास नूरा के साथ खड़े देखकर चौंका। उस वक्त दूसरी हवेली में उसे अचंभा हुआ। वो अब दरमियानी दरवाज़ा पार करके हवेली में दाखिल हो रही थी। उसने बगौर उसे जाते देखा और फिर वहीं खड़ा रहा।